about the disease AIDS. As we all know that the AIDS is a disease which is spread from the sexual contact as well as from the contamination, from the transfusion of the contaminated blood. So let me start with the AIDS. In descriptive mode, we will study about what is AIDS, how the AIDS is spread from one person to another, how we can protect us from the infection of AIDS, as well as what are the types of tests through which we can detect the disease, the person suffering from AIDS or not, as well as the cycle of the virus, how it causes pathogenicity in a normal human. So let me start. First of all, we are taking here the definition, the full form of the AIDS. As we know, AIDS is also known as, or the full form is acquired immunodeficiency syndrome. इस फुल फॉर्म में जितने भी वर्ड्स हैं सबका अपना अपना एक इंडिविजुअल मीनिंग है. फॉर एग्जाम्पल, when we take this word acquired means the disease which can be acquired after the birth, means birth के बाद जो disease है अगर हम body में acquire करते हैं from the environmental effect or through the different contamination, that disease is known as the acquired. Here we are taking immunodeficiency, means in this disease the person always deficient in their immunity, because the pathogen responsible for this disease always act on our immunity. It reduce our immunity so that we cannot find with a minor infection. So this immunodeficiency means the disease in which our immunity get reduced day by day, so that the syndromes can be seen in our body. Syndrome means group of symptoms. मीन्स जब एक पर्सन की बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मल्टीपल सिम्टम्स अगर हमें देखने के लिए मिलते हैं तो हम उस डिजीज को सिंड्रोम नाम देते हैं. तो दैट इज द कंप्लीट मीनिंग ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. एज वी कैन से दैट दिस डिजीज इज ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ये जो डिजीज है जनरली ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की डिजीज है, बिकॉज इसमें जो वायरस है, जो पैथोजन है, दैट ऑलवेज एक्ट ऑन destroy the T lymphocytes, lymphocytes, or we can say helper T cell. जो वायरस है, पैथोजन है एड्स के लिए, दैट इज HIV, that always destroy these helper T cell, and these helper T cells with the reduction in their number they will reduce the immunity of the person. How they reduce the immunity? Because the function of these helper T cell is the production of antibody, but when the number get decreased, so the production of antibody will also decreases. Hence the person acquire this disease and become immune deficient. Now when we talk about the pathogen, then pathogen is named as HIV. Most important है. HIV means human immunodeficiency virus. Human immunodeficiency virus. As the name suggests, that the virus, the type of virus which always cause the deficiency of immunity in human being. That is the full form of HIV. This HIV structure, if we take the structure of this HIV virus, then we can say that there is two single-stranded RNA molecule in nucleus, or we can say the nucleoid part. जो यहाँ पर दो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसके साथ ही इसमें एक स्पेशल एंजाइम है विच इज नेम्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. Reverse transcriptase is the name of
enzyme that is responsible for the reverse transcription. This enzyme helps in the conversion of the RNA to DNA. मॉलिक्यूलर बेसिस में हमने सेंट्रल डॉगमा स्टडी किया, उसमें हमने पढ़ा था कि डीएनए से हमेशा आरएनए का फॉर्मेशन होता है, दैट इज द नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन. लेकिन यहाँ पर इस वायरस में एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम इट कैन प्रोड्यूस द डीएनए फ्रॉम द आरएनए. आरएनए इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, and DNA that is also known as the viral DNA, and this viral DNA is produced by the enzyme reverse transcriptase. After that we will study about that the pathogenicity, means how this virus become enter into the body of a person. Now next आता है कि इसके स्ट्रक्चर में जब हम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल देखते हैं, देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस देखते हैं, तो इसके अंदर डबल लेयर्स होती हैं. डबल लेयर मेम्ब्रेन इज देयर, डबल लेयर मेम्ब्रेन. और जो डबल लेयर मेम्ब्रेन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन. जो सेल मेम्ब्रेन जनरली हम हायर ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोट्स में पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही सेल मेम्ब्रेन इनके अंदर एग्जिस्ट करती है. अगर एड्स की डिस्कवरी की बात करें कि इसका फर्स्ट केस कब एग्जिस्टेंस में आया, तो हम बात करते हैं फर्स्ट केस की. वर्ल्ड लेवल पर जो फर्स्ट केस है दैट वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द यूएसए, जो कि होमोसेक्सुअल में ऑब्जर्व किया गया था, एंड इन द ईयर 1981 में इसका फर्स्ट केस ऑब्जर्व किया गया. और फर्स्ट केस अगर इंडिया की बात करें तो चेन्नई में 1986 में इसका फर्स्ट केस ऑब्जर्व किया गया. और उसके बाद अगर इसके डाटाज को देखें तो काफी मतलब मिलियंस में जो पीपल्स हैं वो एड्स की डिजीज से एक्सपायर हो चुके हैं या उनकी डेथ हो चुकी है. ये एक ऐसी डिजीज है जो इनक्यूरेबल है. हम सिर्फ इससे बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करते हैं. एक बार अगर किसी को एड्स का इन्फेक्शन हो गया तो हम इसे पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते. अब बात आती है कि ये वायरस जो है वो ह्यूमन बीइंग में पैथोजेनिसिटी किस तरीके से कोज करता है. नाउ द नेक्स्ट इज द पैथोजेनिसिटी. पैथोजेनिसिटी मीन्स हाउ दिस वायरस कोज द इन्फेक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, कि ह्यूमन बीइंग में ये इन्फेक्शन कैसे क्रिएट करता है. इसे हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं. आई एम ड्रॉइंग हियर द फ्लो चार्ट. दिस इज द ह्यूमन सेल. हमने यहाँ पर एक जो स्क्वायर बॉक्स बनाया है इसको हम एक ह्यूमन सेल की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ह्यूमन सेल तो इसमें हम इसे होस्ट भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर वायरस का इन्फेक्शन होगा. वो वायरस किस तरीके से ह्यूमन सेल के अंदर एंट्री करेगा. तो एक चीज ध्यान रखने की, सबसे पहले हमने यहाँ देख लिया कि हेल्पर टी सेल्स पर ये अटैक करता है. उसके साथ साथ इट ऑल्सो अटैक्स ऑन मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस पर भी इसका अटैक होता है. तो किस तरीके से ये वायरस ह्यूमन सेल में इन्फेक्शन क्रिएट करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग हियर दिस इज द वायरस and this virus consists of this genetic material that is RNA. तो ये जो बाहर हमने सर्कुलर स्ट्रैंड बनाया है that is the viral protein coat. This is viral protein coat. और इसके अंदर this one is the RNA genome, that is the viral RNA. जब ये वायरस ह्यूमन सेल में, होस्ट सेल में एंटर करेगा, then what will happens here? Only the genome will enter. This is the viral genome. Viral RNA will enter. सिर्फ वायरल आरएनए एंटर करेगा, प्रोटीन कोड रिमेन आउटसाइड. प्रोटीन कोड की एंट्री सेल में नहीं होगी. अब ये क्या करता है कि ये आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से क्या करेगा, एक अपना वायरल डीएनए प्रोड्यूस कर लेता है. वायरल डीएनए इसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किया और वायरल डीएनए प्रोड्यूस कर लिया फ्रॉम दिस वायरल आरएनए. अब रिजल्ट क्या होगा कि इस सेल का जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर इस होस्ट सेल का अपना जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज द न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल.
Now this DNA get incorporated. Viral DNA get incorporated with host DNA. With host DNA. इस host DNA के साथ ये ऐड हो जाएगा. तो जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर ऐड हो गया, तो जब ये होस्ट डीएनए के साथ ऐड होगा तो होस्ट डीएनए जब जब अपना प्रोसेस करेगा रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, तब तब इस वायरल डीएनए के भी ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन चलते रहेंगे. रिजल्ट होगा कि अब यहाँ पर जो वायरल आरएनए है, वायरल आरएनए दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन, तो वायरल आरएनए की कॉपीज ये होस्ट सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा. जैसे ही यहाँ पर वायरल आरएनए बना, आफ्टर दैट मोर एंड मोर वायरल आरएनए विल प्रोड्यूस एंड दिस सेल, when the translation process takes place in this cell, then what will happen? The protein is formed and these RNAs get surrounded by the protein coat and they will come out of the cell. और जब ये सेल से बाहर आएंगे तो इन सेल के पास अपना ये वायरल आरएनए प्रेजेंट होगा. तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जब वायरल जो वायरस था HIV वायरस, जब वो एक नॉर्मल सेल में, मैक्रोफेजिक सेल में एंट्री करता है, तब वो अपना वायरल डीएनए प्रोड्यूस किया. उसने अपने वायरल डीएनए को होस्ट के डीएनए के साथ अटैच कर दिया. जब होस्ट डीएनए ने अपने नॉर्मल प्रोसीजर्स को फॉलो अप किया तो उसने वायरल आरएनए की प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी. और जैसे जैसे वायरल आरएनए बने, उनके चारों तरफ प्रोटीन कोड्स बनने लगे एंड दीज प्रोटीन कोड्स डेवलप्ड फ्रॉम द होस्ट सेल. होस्ट सेल से ये प्रोटीन कोड्स डेवलप हो रही हैं और धीरे धीरे ये वायरसेस यहाँ से बाहर निकलते हैं. देन अगेन दे विल इन्फेक्ट द सेल. ये सेल को फिर से इन्फेक्ट करेंगे और फर्दर धीरे धीरे ये डिजीज, ये वायरस जो है वो एक सेल से दूसरी सेल में इन्फेक्शन क्रिएट करेगा. तो सबसे पहले इसने मैक्रोफेज पर अटैक किया. आफ्टर दैट दीज वायरसेस comes out of these macrophages and will enter into the helper T cell. और ये helper T cell के नंबर को भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनके अंदर जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाए. लेकिन यहाँ पर ये सेल अपना काम एज यूजुअल करती रहेगी, बट इस सेल को हम यहाँ पर अब वायरल फैक्ट्री का नाम दे देते हैं. वायरस फैक्ट्री. क्यों कहा वायरस फैक्ट्री? क्योंकि जो वायरस का जीनोम बनाने का काम था वो अब यहाँ मैक्रोफेजिक सेल कर रही है, वो उसमें हेल्प कर रही है. तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ वायरसेस बनेंगे जो अल्टीमेटली पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं. दैट इज द पैथोजेनिसिटी ऑफ द वायरस, HIV virus, how this HIV virus cause infection in human beings. After that, next one is the transmission of disease. एड्स का जो ट्रांसमिशन है वो किस तरीके से होता है? तो एड्स के ट्रांसमिशन में जनरली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? दिस डिजीज स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मीन्स अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है. अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. Unprotected means when the condom is not used during the sexual intercourse, then the chance of the spread of the AIDS become more. Second, we can say that contaminated needle means clinics में अगर एक पर्सन को पहले एक निडल, एक सिरिंज से इंजेक्शन दिया और सेम इंजेक्शन से अगर दूसरे पर्सन को हम उसी निडल को यूज करते हुए उसमें मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं तो वहां भी एड्स के स्प्रेड होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. थर्ड, वी कैन से दैट बार्बर शॉप पर कंटामिनेटेड ब्लेड का, एक ही ब्लेड को कई लोगों की शेविंग करने के लिए यूज करने की वजह से भी डिजीज के स्प्रेड होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. फोर्थ, वी कैन से दैट ट्रांसफ्यूजन ऑफ contaminated blood means कोई भी पर्सन, मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट होता है या कोई भी ब्लड रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें अगर बिना HIV का टेस्ट कराए कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को, नीडेड पर्सन को ब्लड ट्रांसफर करता है और उससे भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू एड्स के होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं.
ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि जो ड्रग एब्यूजर्स हैं वो ड्रग्स को लेने के लिए सेम इंजेक्शन मीन्स पीयर ग्रुप होता है, ग्रुप में लोग ड्रग्स यूज करते हैं और इंजेक्शन के थ्रू जो अपनी बॉडी में ड्रग को इंजेक्ट करते हैं तो उस एक ही सिरिंज से वो कई लोग ड्रग को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो उससे भी जो एड्स के स्प्रेड होने के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। फिफ्थ वी कैन से दैट इन ड्रग एब्यूजर्स नेक्स्ट वी कैन से दैट when the sex is done with the multiple partners, जो multiple partners के साथ sexual intercourse होता है उसमें भी disease के chances हो सकते हैं। sexual contact with multiple partners, so these are the certain transmission of the means mode of transmission of this disease. Next we can say that one more is there, seventh, from infected mother to her baby through placenta से इन्फेक्टेड मदर अगर HIV पॉजिटिव है, मदर HIV पॉजिटिव है तो उसके बच्चे को प्लेसेंटल कनेक्शन की हेल्प से ये डिजीज जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। सो दीज आर द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज। तो अगर हम इसमें प्रिवेंशंस देखना चाहें तो प्रिवेंशंस क्या होंगे? सेक्सुअल कॉन्टेक्ट always should be protected, means use of condom should be there. Contaminated needles means ये हमें चेक करना चाहिए कि डॉक्टर जिस इंजेक्शन से हमें निडल से हमें इंजेक्शन दे रहा है उस इंजेक्शन का यूज पहले हुआ या नहीं हुआ। इट मीन्स इसे रोकने के लिए डिस्पोजेबल निडल और सिरिंज का यूज करना चाहिए। बार्बर शॉप है, अवॉइड किया जाए बार्बर शॉप्स को। हम होम घरों पर ही शेविंग्स के लिए मोटिवेट कर सकते हैं मेल्स को। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, कि अगर कोई कंटामिनेटेड कोई भी पर्सन ब्लड डोनेट कर रहा है तो बिफोर ब्लड डोनेशन ही शुड बी स्क्रीन्ड फॉर द HIV टेस्ट। उसे HIV टेस्ट की स्क्रीनिंग मतलब HIV के लिए स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए। देन ड्रग एब्यूजर है, इसे अवॉइड किया जाए कि वो सेम सिरिंज से ड्रग एब्यूज ना करें। देन मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट को प्रिवेंट किया जाए। और अगर मदर को ऑलरेडी HIV का इन्फेक्शन है तो इस चीज को सबसे पहले हम डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करें कि कैसे उस मदर से उसके होने वाले बेबी तक उस डिजीज के स्प्रेड को हम किसी तरीके से रोक सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सिम्टम्स, कि यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ग्रुप ऑफ सिम्टम्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो सिम्टम्स में अर्ली डिटेक्शन जब हम करते हैं तो सिम्टम्स में जनरली 2 और 3 सिम्टम्स ऑब्जर्व होते हैं। फर्स्ट जैसे फीवर, नेक्स्ट इज वेट लॉस एंड थर्ड वी कैन से दैट डायरिया। These are 3 symptoms which we can observe in a person that getting the infection of the HIV. Now next we are taking here the test, how we can confirm the person is suffering from AIDS or not. So how we can detect it? First we can say that there is a special test that is named as ELISA, most important, that is enzyme linked immunosorbent assay। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे एक ऐसी टेक्निक जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन से ये टेस्ट किया जाता है कि वेदर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम HIV और नॉट, मीन्स ही इज HIV पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस टेस्ट से ये क्लियर किया जा सकता है। उसके अलावा ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा कुछ सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि दिस डिजीज बिकम इनक्यूरेबल। तो यहाँ पर जनरली एक सिंपल साल्ट यूज करते हैं दैट इज नेम्ड एज ज़िडोब्यूटिन, दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एड्स। लेकिन इस एड्स के ट्रीटमेंट जो ट्रीटमेंट है
है वो काफी प्रॉब्लमेटिक है, ट्रीटमेंट प्रॉपरली सक्सेसफुल नहीं है, तो इसलिए बेहतर यही होता है कि HIV से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स को यूज किया जाए बजाय कि उसके ट्रीटमेंट के, बिकॉज दिस डिजीज बिकम इनक्यूरेबल. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिजीज दैट इज एड्स. From which type of pathogen it caused in our body, what is the pathogenicity, that is most important कि pathogenicity किस तरीके से जो HIV है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करता है. So in the next video we will study about the next disease, cancer.